میں دلہن بنی کافی دیر سے زاہد کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اس کمرے میں بیٹھے تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا، لیکن دلہے کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اب تو میں بیزار ہونے لگی تھی، کمر اکڑ چکی تھی اور بھاری لہنگا مجھے چبھ رہا تھا۔ میں نے کبھی اس طرح کے بھاری بھرکم لباس نہیں پہنے تھے، مگر عروسی لباس تو بھاری ہی ہوتا ہے، اس لیے مجبوراً مجھے پہننا پڑا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ نکال لیا۔ میرا دل اب سب کچھ بھول بھال کر زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لبوں پر مسکان آ چکی تھی، منہ دکھائی کے بنا تو میں گھونگھٹ ہٹانے والی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی زاہد نے میرا گھونگھٹ ہٹایا تو میں حیران رہ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں ہلدی سے بنا عجیب سا ایک لیپ تھا۔ سحر، یہ لو، آج سے تم یہ لیپ روز میری ماں کو لگایا کرو گی۔ ان کی بات پر میں اور حیرت میں پڑ گئی۔ بھلا پہلی رات کو اپنی دلہن منہ دکھائی کی بجائے وہ مجھے ایک لیپ تھما رہے تھے۔ اس طرح سے کون کرتا ہے اپنی دلہن کے ساتھ؟ میں خاموشی سے کبھی اس پیالے کو دیکھتی اور کبھی زاہد کو۔ مجھے حیرت میں دیکھ کر وہ پھر بولا، سحر، میری ماں کئی سالوں سے سوئی ہوئی ہیں اور اس لیپ سے وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیا؟ اب تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی، کیونکہ میری ساس ہی تو مجھے بیاہ کر لائی تھی۔ زاہد، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی والدہ ہی تو مجھے بیاہ کر لائی ہیں۔ میری بات سن کر زاہد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم سے جو کہا گیا ہے وہ کرو، مجھے سوالات سننا بالکل پسند نہیں۔ اب تو میں اور بھی پریشان ہو چکی تھی۔ مجبوراً وہ پیالہ اٹھایا اور اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی جو زاہد نے مجھے دکھایا تھا، لیکن وہاں جو کچھ دیکھا وہ تو میرے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ میں ایک بہت ہی سادہ اور صوم و صلات کی پابند لڑکی تھی اور میرے گھر کا ماحول بھی ویسا ہی تھا۔ ہم 4 بہنیں تھیں، میں دوسرے نمبر پر تھی۔ امی ابا نے ہمیں بہت لاڈوں سے پالا تھا۔ ابھی میری تعلیم مکمل ہی ہوئی تھی کہ زلیخا خالہ ہمارے یہاں آ گئیں اپنے اکلوتے بیٹے زاہد کا رشتہ لے کر۔ اصل میں وہ رشتہ تو میری بڑی بہن مہر بانو کے لیے لائی تھی، مگر اچانک نہ جانے کیا ہوا، انہوں نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ یہ سن کر امی ابا بھی خاموش ہو گئے تھے۔ میں جو خوشی خوشی ان سب کی آؤ بھگت میں مصروف تھی، یہ سن کر مجھے بہت بڑا دھچکا لگا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ لوگ کیسے تھے جو دیکھنے تو بڑی بیٹی کو آئے لیکن پسند چھوٹی کو کر گئے؟ سوچ سوچ کر میرے سر میں درد پڑ چکا تھا، لیکن حیرت تو مجھے تب ہوئی جب مہر نے بتایا کہ ابا نے ان سے سوچنے کا وقت مانگا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپی؟ بھلا سوچنا کیسا؟ ابا کو انکار کر دینا چاہیے صاف صاف، لیکن مہر آپی کا کہنا تھا کہ اتنا اچھا رشتہ وہ ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے۔ پگلی، میرا رشتہ نہ ہوا تو وہ تیرے لیے انکار تھوڑی کریں گے۔ آپی کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ وہ میرے لیے خوش تھیں۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود میرا رشتہ زاہد کے ساتھ کر دیا گیا، اور اس رشتے پر میں کس طرح راضی ہوئی تھی یہ میرا ہی دل جانتا تھا۔ منگنی کے 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی اور آج میں بیاہ کر اس گھر میں آ چکی تھی، لیکن پہلی ہی رات مجھے جو کچھ سننا اور دیکھنا پڑا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ جب میں خالہ کے کمرے کی طرف بڑھی تو میں نے ایک آدمی کو ان کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ اس کا حلیہ بہت ہی عجیب سا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کمرے کا ماحول بہت ہی پراسرار سا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک اتنی زیادہ تھی کہ مجھے کپ کپی سی ہونے لگی۔ وہاں پر کوئی بیڈ نہیں تھا، بلکہ خالہ کو ایک لکڑی کے بنے تختے پر سلایا گیا تھا۔ ایک عجیب سی بو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، شاید دواؤں کی تھی۔ میں نے سوچا اور دوپٹے سے ناک کو ڈھک لیا۔ وہاں ایک برش رکھا تھا، میں نے جلدی سے وہ اٹھایا اور اس کی مدد سے وہ لیپ ان کے جسم پر لگانے لگی۔ ہاتھ لگانے سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر خالہ کے چہرے پر پڑی تو میری چیخ نکل گئی، یا اللہ! کیونکہ زلیخا خالہ تو ایسی دکھتی ہی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ خالہ کا چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، مگر کل تک تو وہ بالکل ٹھیک تھیں۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ اگر یہ میری ساس تھیں تو پھر وہ کون تھی جو میرا رشتہ لے کر آئی تھی؟ میرا سر شدید چکرا رہا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں واپس آئی تو سب کچھ نارمل ہی تھا۔ اب وہی شوہر مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی شخص تھا جو کچھ دیر پہلے ایک جلاد کی طرح مجھے حکم سنا رہا تھا۔ میں نے سارے سوال خاموشی سے اپنے اندر دفن کر دیے۔ دوسری صبح میرے گھر والے ناشتہ لے کر آئے تھے۔ میں جب تیار ہو کر نیچے ڈرائنگ روم میں پہنچی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ خالہ زلیخا امی ابا کے ساتھ بیٹھی تھی اور سب ہنس بول رہے تھے۔ میرے تو چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ امی نے مجھے بلا کر پیار کیا، ابا نے سینے سے لگایا، لیکن میں صرف خالہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ کل رات جو عورت ایک زندہ لاش کی طرح میرے سامنے لیٹی ہوئی تھی، وہی آج
हसीन लिबास और जेवरात से आरास्ता होकर हंस बोल रही थी। कमरे से निकलने से पहले जाहिद ने मेरे कान में सरगोशी की थी, खबरदार जो किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो। और इसीलिए मेरी ज़ुबान को ताला लगा हुआ था। मुझे उस घर में आए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। हर रात मेरा शोहर मुझे वही लेप मेरे हाथ में देकर खाला के कमरे में भेज देता और हर रात वही अजीब हुलिये वाला शख्स मुझे खाला के कमरे से चोरी छुपे निकलता दिखाई देता, और वो भी उसी वक्त निकलता था जब उसे इल्म होता कि मेरे आने का वक्त हो चुका है। ये बात मैंने आज तक जाहिद को नहीं बताई थी। वो मेरा यकीन नहीं करता, बल्कि उल्टा मुझे घर से निकाल देता, जिस बात की वो रोज़ मुझे धमकी दिया करता था। और यही खौफ मुझे अब तक खामोश रखे हुए था। खाला के कमरे में कुछ देर रुकना भी मुहाल था मेरे लिए, क्योंकि उनका कमरा बहुत ही ठंडा होता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि एक बीमार खातून को ठंड में क्यों रखा हुआ है। मैं उसी ब्रश से उनको लेप लगाती और आखिर में वो ब्रश कमरे में अलमारी में छुपा कर रख देती, ताकि जाहिद को इल्म ना हो कि मैं खाला को हाथ नहीं लगाती। हाथ लगाने का सोच कर भी मुझे करेहत आती थी। मैं काफ़ी डरपोक सी थी बचपन से ही, और मेरा खौफ था कि मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। आजकल मेरी सास खाला जुलेखा कहीं नज़र नहीं आ रही थी। जाहिद ने मुझे एक रात कहा कि अगर कोई अम्मा जान का पूछे तो कहना वो अपनी बहन के घर गई हैं लाहौर। मैं सर झुकाकर इस बात में सर हिला गई और कर भी क्या सकती थी। ये घर अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए हुए था। वो आदमी मुझे आधी रात को दिखाई देता कमरे से निकलते हुए, और इसके बाद वो कभी कहीं नज़र ना आता। मैं पूरे घर का चप्पा चप्पा छान चुकी थी। मेरी सास के कमरे के बाहर ताला लगा रहता दिन भर। मुझे बस उसी वक्त जाने की इजाज़त होती थी जब मुझे वो लेप दिया जाता। जाहिद का बहुत बड़ा बिजनेस था, वो कई फैक्ट्रियों का मालिक था। उसका पूरा दिन बाहर ही गुजरता था, और उसकी गैर मौजूदगी में मैंने बहुत कोशिश की कि असल बात की तह तक पहुंच जाऊं, मगर सब बेसूद। फिर एक दिन मैंने एक फ़ैसला कर ही लिया। आज जब मैं खाला जान के कमरे में पहुंची तो चौंक गई, क्योंकि वो अलमारी गायब थी जिसमें ब्रश छुपा कर रखा गया था। ओह मेरे खुदाया, अब मैं क्या करूंगी। मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी, लेकिन लेप लगाए बिना तो मैं बाहर जाने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे जाने के बाद जाहिद आता था अपनी माँ के पास और सब कुछ गौर से देखा करता था। मजबूरन मुझे वो लेप अपने हाथों से लगाना पड़ा। मेरे हाथों में कपकपी तारी हुई। एक तो वो लेप ठंडा था, ऊपर से कमरा ठंडा होता था। मुझे न जाने क्या सूझी, मैंने खाला का माथा छू लिया, और छूते ही मुझे करंट लगा, क्योंकि उनका माथा बर्फ़ की तरह ठंडा था। या अल्लाह, ये सब कुछ क्या है? खाला तो मर चुकी थी। मैंने उसी वक्त ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जाहिद जाहिद मेरी बात सुने, खाला तो मर चुकी हैं, उनका जिस्म ठंडा बर्फ़ हो गया है। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं एक लाश के साथ अकेली थी। खौफ से मेरा दिल बंद होने को था। मेरी आवाज़ पर जाहिद भागता हुआ आया, क्या बकवास कर रही हो तुम सहर? मैं सच कह रही हूँ, आप खुद आकर देखें। ना तो इनको सांस आ रही है और ना दिल धड़क रहा है, मैंने रोते हुए कहा। उसी वक्त जाहिद के पीछे वही अजीब हुलिये वाला आदमी अंदर आया। बेवकूफ़ लड़की, ये क्या बकवास कर रही है? वो मुझे लाल अंगारा आंखों से घूरता हुआ बोला। उसे देखकर मैं और खौफजदा हो गई। परेशान नज़रों से देख रहा था अपनी माँ को कि अचानक उस आदमी ने जाहिद को खींचा। जाहिद मियाँ, इस लड़की की यही सज़ा है कि अब ये इसी कमरे में रहेगी। उसके कहते ही जाहिद भी गुस्से भरी नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, मेरी माँ जिंदा है और इन्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम यहाँ रहकर अपनी सज़ा भुगतो। ये कहता हुआ वो बाहर निकल गया और दरवाजे में ताला लगाने की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा पीट डाला। खुदा के लिए मुझे बाहर निकालें, आपको खुदा का वास्ता। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मैं कुछ नहीं कहूँगी, आपकी अम्मी जान जिंदा है। मैं भूल गई थी, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दें। मैं चिल्ला चिल्ला कर उसे यकीन दिला रही थी कि मैं कुछ ना कहूँगी, लेकिन वहाँ से अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। थक हार कर मैं कोने में बैठी सिसकती रही। दीवार पर लगे आईने पर नज़र पड़ी तो और खौफजदा हो गई। ठंड से मेरे होंठ नीले रह गए थे। तो क्या मैं भी मरने वाली थी? यहाँ तो कोई मेरा पुरसाने हाल ही ना था। या मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। कमरे में अटैच बाथ था, मैं वहाँ चली गई। वो कुछ गर्म था, वरना कमरे में तो मैं फ्रीज हो जाती। अब मैंने कुछ गौर किया तो याद आया कि जाहिद उस आदमी से वाकिफ़ था जो हर रात इस कमरे से निकलता था। बल्कि वो तो उसकी हर बात इस तरह मान भी रहा था कि जैसे दोनों मिले हुए हों। मतलब दोनों मिले हुए ही थे। लेकिन आखिर यहाँ चल क्या रहा था? मैं इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि फजर की अजान की आवाज़ें आने लगीं। मैंने फिर से अपने रब को मदद के लिए पुकारा और कुछ ही देर में अचानक बड़े ज़ोर से दरवाज़ा खुला। मैंने घबरा कर देखा तो मैं हैरान रह गई कि वहाँ तो मेरे शोहर के साथ पुलिस अंदर आई थी। अब मैं महफूज थी।
मैं ये सब नहीं चाहती थी, मगर मुझे अपनी हिफाजत के लिए कुछ इक़दामात करने थे। इसलिए मैंने 2 दिन पहले एक फ़ैसला किया था। मैंने अपनी बहन महर को कॉल मिलाई थी। हम दोनों में बस 2 साल का फ़र्क था। हम दोनों अच्छी दोस्त भी थीं। मैंने महर को पहले दिन से लेकर सारी बात बताई। मेरी बात पर वो सख्त हैरान और परेशान हो गई। उसका कहना था कि मुझे अब वहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए, मगर मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया कि शादी के बाद तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन महर, मुझे बहुत खौफ आता है खाला के कमरे में जाते हुए। वहाँ कुछ गलत हो रहा है। मेरी बात पर महर ने मुझे दिलासा दिया और उसने मुझसे वादा लिया कि तुम अपनी सास के कमरे में जाने से पहले मुझे एक मैसेज करोगी और वापस आने के बाद भी। अगर तुम्हारा मैसेज मुझे ना मिला तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई थी। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ। फिर हमने एक कोड वर्ड रखा था। वो अपना कोड मैसेज करती और मैं जवाब में उसे अपना कोड भेजती। ये भी महर ने इसलिए रखा था कि अगर मेरी जगह कोई और उसे मैसेज करेगा तो उसे कोड का इल्म नहीं होगा और इस तरह महर चौकन्ना हो जाएगी। और उस रात भी वही हुआ। काफ़ी देर जब मैंने मैसेज नहीं किया तो महर ने अपना कोड मेरे नंबर पर सेंड किया। मैसेज टून सुनते ही जाहिद ने गुड नाइट का रिप्लाई कर दिया। इस बात से महर परेशान हो चुकी थी। फिर भी उसने कॉल की। काफ़ी देर बाद जाहिद ने फ़ोन रिसीव करके बताया कि सहर सो चुकी है, बहुत थकी हुई थी। ये सुनते ही महर ने जल्दी से बाबा को जगाकर सारी सूरत हाल से आगाह किया और वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए, मगर वहां एक सिपाही के अलावा कोई ना था। बड़ी मुश्किल से फजर के वक्त SHO आया और उसके साथ ही वो लोग मुझे सर्द रूम से निजात दिला सके। अब जाहिद के साथ साथ वो आदमी भी पुलिस के सवालात की जद में था। अब मैं काफ़ी संभल चुकी थी। कुछ भी था, जाहिद मेरा शोहर था। मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। मैं उससे अकेले में बात करना चाहती थी। पुलिस ने मेरी सास की लाश को एम्बुलेंस में भिजवा दिया पोस्टमार्टम के लिए। इस दौरान जाहिद ज़ारो कतार रोए जा रहा था। मैंने उसे बमुश्किल संभाला। मेरे पूछने पर उसने बताया कि सहर में अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने मुझे बाप बनकर पाला था, इसलिए हर खुशी हराम कर ली थी मेरी खातिर उन्होंने खुद पर। मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी हो चुका था कि मुझे इल्म ही ना हो सका कि मेरी अम्मी जान को दिल का आर्जा लाहक है। मैं मुल्क से बाहर था जब मुझे उनके हार्ट अटैक की खबर मिली। मैं उसी वक्त सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस चला आया, लेकिन यहाँ आते ही डॉक्टर्स ने बताया कि वो मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता था? मेरी माँ मुझे कैसे छोड़कर जा सकती थी? मैं बहुत लड़ा उनसे, मगर वो एक ही बात की रट लगाए जा रहे थे, शी इज़ नो मोर। मुझे आपे से बाहर होता देखकर गार्ड ने मुझे कंट्रोल किया। वहीं पे मुझे पीर बाबा इनायत अली ने कहा कि तुम्हारी माँ जिंदा है बच्चे। और उसकी ये बात सुनकर मैं खुशी से चिल्ला उठा। उसने कहा, बस इसको चुपचाप अपने घर ले चल, मैं इसका इलाज करूँगा रूहानी, वो ठीक हो जाएगी। उसने जैसा कहा मैं वो सब करता गया। उसने कहा एक कमरे में 4 AC लगवा दो, उसी में अम्मी जान को रखा जाएगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। वो रोज़ उस कमरे में पढ़ाई किया करता था और बदले में रोज़ाना एक भारी रकम लिया करता था कि उसे सदके का जानवर ज़िबा करना होता था। फिर उसने मुझे निकाह की तजवीज़ दी और कहा कि अपनी माँ की खिदमत के लिए एक सादा और मासूम लड़की लाओ। जब महर बानो को देखने पहुंचा तो वो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट लगी। तभी मैंने अपनी खाला के कान में कहा कि मुझे सहर पसंद है क्योंकि तुम बहुत सादा सी लगी मुझे। वो खामोश हुआ तो मैंने पूछा, और वो जो आपकी वालदा बनकर मेरे घर आई थी वो कौन थी जाहिद? जाहिद ने नज़रें चुरा कर कहा, वो मेरी खाला हैं। उनकी और अम्मी जान की चेहरे में खासी मुमासलत है, इसीलिए मैंने उनको भी अपने राज में शामिल कर लिया था। लेकिन वो 1 हफ्ते बाद ही अपने घर चली गई। मुझे वहशत हो रही थी। अब जाहिद, आप सब ने मिलकर धोखा दिया मुझे और मेरे घर वालों को। क्या आपको खौफे खुदा भी नहीं? मैं अब सिसकने लगी थी। किस तरह हम सब की ज़िंदगी को मजाक बनाकर रख दिया था उन लोगों ने। सहर, मेरी बात तो सुनो। वो मुझे पुकारता रहा, मगर अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती थी। मैं अब्बा के साथ अपने मैके आ गई। इनायत अली ने इकबाल जुर्म कर लिया था। उसका कहना था कि जब उसने जाहिद को माँ की मोहब्बत में दीवाना होता देखा तो उसने समझ लिया कि ये मेरा नया शिकार है, और उनका तो काम ही यही है। जो लोग मजबूर होते हैं उनकी मजबूरी और बेबसी का फ़ायदा उठाओ। बीमार को शिफा का लालच देकर हम पैसे बटोरते हैं। कमरे में इतने AC लगवा कर मैंने मैयत को ख़राब होने से बचा लिया। फिर एक दवाई बनाई जो जिल्द को फटने से बचाती है। वो लगाने की ज़रूरत थी किसी लड़की की जो बिना कोई सवाल किए ये सब कुछ कर ले। वो बड़ी ढिठाई से हंस रहा था। उसे सज़ा हो गई थी और उसका साथ देने के लिए जाहिद को भी 1 साल की सज़ा हुई थी, एक मैयत को छुपाने और उस पर शैतानी अमल करवाने के सिलसिले में। और जाहिद की रिपोर्ट से पता चला कि वो ज़हनी मरीज़ भी है।
بچپن سے ہی والد کی موت کے بعد وہ کافی عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس کی والدہ اس کا علاج کرواتی رہی تھی سائیکیٹرسٹ سے، اور اسی نفسیاتی پیچیدگی کی وجہ سے وہ اپنی ماں کی موت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ ایک تندرست ذہن والا بندہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ میری ساس کی تدفین ہو چکی تھی، اس میں زاہد کو شامل کیا گیا۔ تقریباً 4 ماہ بعد ان کی لاش کو دفنایا گیا تھا۔ آج بھی وہ سب یاد آتا ہے تو میں خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ ایک بھیانک سا خواب لگتا ہے یہ سب۔ ابا نے خلا کی بات کی